ماحولیات کا، ایکو سسٹم کا دھیان نہیں رکھیں گے، اس کے اثرات ہیں، انسانیت کو اس کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑے گی۔ اس کی کامیابی کے اندر جب تک ساری قوم مل کے اس چیز کا احساس نہیں کرے گی کہ یہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ پانی کا بڑا مسئلہ آنے والا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سنگین صورتحال سے قوم کو آگاہ کر دیا۔ کہتے ہیں ابھی سے صوبے کہنا شروع ہو گئے ہمارا پانی چوری ہو گیا، آگے جا کر پانی کا بحران مزید سنگین ہو جائے گا۔ ہمارے ملک کا 80% پانی گلیشیئر سے آتا ہے اور وہ گلوبل وارمنگ سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت سمیت کئی ممالک کو مسائل ہوں گے۔ ماحولیات کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب میں یہ بھی کہا کاربن کے اخراج کے بڑی عالمی حدت سے نمٹنے کے لیے فنڈز فراہم کریں۔ نئی پود کے لیے پودا ضروری، ماحول بچائیں نسلیں بنائیں۔ عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں کہا عالمی برادری کو باہمی مفادات اور تعاون کی بنیاد پر معقول ماحولیاتی انتظامی نظام کی تعمیر کو فروغ دینا چاہیے۔ ماحول کی بہتری کے لیے مخلص ہو کر کام کرنا انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ کرۂ ارض بنی نوع انسان کا مشترکہ گھر ہے۔ زمین کی انسانوں کو پکار، جنگلات اور درختوں کا تحفظ ہم سب کا فرض۔ دنیا گلوبل وارمنگ کی لپیٹ میں، اقوام متحدہ کی ماحول کو بچانے کے لیے مل کر کام کرنے کی درخواست۔ عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں بات کرتے ہوئے UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا دنیا کو اس وقت ہم سب کی ضرورت ہے۔ صدر ورلڈ اکنامک فورم نے کہا دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا سامنا ہے، ہم نے مل کر اس پر قابو پانا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بولے ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے ہمیں کوششوں کو دگنا کرنا ہوگا۔ ہم نے جہاں پر نیچر کو پروٹیکٹ کرنا ہے وہاں پر اپنے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے اور ان کو جابز دلوانی ہے، اور اللہ کے فضل سے ابھی تک جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں اس میں 85,000 جابز دی گئی ہیں، اور انشاءاللہ اس سال ہم اس کے اندر 2 لاکھ جابز کا اضافہ کریں گے۔ گرین پاکستان بنا یقین پاکستان، دنیا ماحولیات کے تحفظ کے لیے پالیسیز کی معترف۔ پاکستان کی میزبانی میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس، اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں پروقار تقریب، بھرپور رنگ بکھرے۔ معاون خصوصی ملک امین اسلم کہتے ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے نیشنل پارکس بنا رہے ہیں، ریچارج پاکستان منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کانفرنس کا انعقاد ہمارے لیے اعزاز سے کم نہیں۔ وزیر مملکت زرتاج گل نے کہا حکومت نے بلین ٹری سمیت کئی ماحول دوست پروگرام شروع کیے ہیں، ہر شہری کو ان کی کامیابی کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے یہ زبان درازی بند رکھی تو کوئی باضمیر پاکستانی نہ تم سے ہاتھ ملائے گا نہ تم سے گفتگو کرے گا۔ افغانستان کو سخت وارننگ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی افغان مشیر قومی سلامتی کو تنبیہ، کہا افغان مشیر قومی سلامتی کان کھول کر سن لے، زبان درازی بند نہ کی تو کوئی پاکستانی ان سے ہاتھ نہیں ملائے گا۔ ان کے بیان پر میرا خون کھول رہا ہے، ہم استحکام اور امن کی بات کر رہے ہیں۔ افغان مسئلے پر تہمتیں لگانے والے بھی قائل ہو گئے، یہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا۔ پاکستان افغانستان میں قیام امن کا کردار ادا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی کہا بھارت کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، بھارت کشمیر سے متعلق فیصلوں کی واپسی کا کوئی روڈ میپ بھی دے تو بات کی جا سکتی ہے۔ FATF کے پاس مزید گرے لسٹ میں رکھنے کا جواز نہیں رہ گیا۔ اسٹیک ہولڈرز کی مرضی ہوگی تو میڈیا اتھارٹی بنے گی۔ وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری کی CPNE عہدیداروں کو یقین دہانی۔ لاہور میں CPNE وفد سے ملاقات، کہا ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے میڈیا پر پابندی کا تاثر ابھرے۔ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا بل پچھلی حکومت کا ہے، ہم جو بھی بل لائیں گے مکمل مشاورت سے لائیں گے، ایسی قانون سازی نہیں کی جائے گی جس سے میڈیا ورکرز کا نقصان ہو۔ CPNE وفد کی قیادت صدر عارف نظامی نے کی۔
मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की इकदामात बेसूर। सिंध में वबा के वार ना रुके। 2 हफ्ते के लॉकडाउन के बावजूद मस्बत केसेस की शरह कम ना हो सकी। कराची समेत दीगर अजला में केसेस 5% से ऊपर। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक सिंध में अभी तक शरह नीचे नहीं आई। वबा की तीसरी लहर सिंध में देर से पहुंची, इसीलिए कमी में थोड़ा वक्त लगेगा। कराची के ताजरों का गुस्सा पीर तक ठंडा। दुकानदारों ने कारोबार रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान वापस ले लिया। पीर तक की डेडलाइन दे दी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की 2 दिन में मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। मुज़ाकरात में ताजिर रहनुमा बरस पड़े। पुलिस पर नारवा सलूक का इल्ज़ाम। कहा मुतालबात पूरे ना हुए तो पीर को दुकानें 8 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा किसी का मुआशी कत्ल नहीं चाहते, फैसले खुशी से नहीं किए। मुत्तहिदा और तहरीक इंसाफ मामले पर सिर्फ सियासत कर रही है। शिकवों शिकायतों से लबरेज मोहब्बतनामा, सिंध के विफाक पर तासुब पर नजरअंदाज करने के इल्जाम। वजीर आला सिंध की वजीर आजम को शिकायत से भरी चिट्ठी। इल्जाम लगाया तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद सिंध के साथ तासुब बढ़ता जा रहा है। हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। विफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिंध के मंसूबे नजरअंदाज कर दिए गए। विफाकी हुकूमत का इदारा SIDCL सिंध में ईस्ट इंडिया कंपनी तर्ज की मुदाखलत है। सिंध को पंजाब और KP से कम मंसूबे दिए गए। सिंध के अवाम के साथ ज्यादतियों का सिलसिला बंद किया जाए। का पाकिस्तान में बड़ा अहम रोल है, हम उस रोल को तस्लीम करते हैं। इलेक्शन इस्लाहात, अदालती इस्लाहात जैसे अहम मामलात के ऊपर अपोजिशन को हुकूमत के इक़दामात का साथ देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का आपस का झगड़ा ख़त्म हो तो फिर PMLN को फैसला करे कि उनकी आखिर पॉलिसी क्या है, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है। और फिर जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो फिर फजलुर रहमान साहब की समझ आएगी कि वो क्या चाहते हैं। अपोजिशन के इल्हाक और तलाक की कहानी, फवाद चौधरी की ज़बानी। वफाकी वजीर ने अपोजिशन को निशाने पर ले लिया। कड़ी तनकीद करते हुए कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी में तलाक हो गई। मरियम ने नून लीग पीपल्स पार्टी के हवाले की थी, बाद में तलाक हो गई, वरना दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे। वट्टा सट्टा हो गया था, बात बनी नहीं। मौलाना निकाह करवाया करे, सियासत इनका काम नहीं। ऑपोजिशन तिनकों की तरह बिखरी हुई है, लेकिन फिर भी हम हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाह हैं। ये भी कहा बजट में आम आदमी के लिए रिलीफ होगा। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर जोर देंगे। आटे का बिल घाटे का बिल। बिलावल ने आम आदमी की मुश्किलात एक एक करके गिनवा दी। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मवाजना। कहा हमारे दौर में एक घराने की आटे की ज़रूरियात 2000 और अब 3500 में पूरी हो रही है। एक आम घराना किराए की मद में 3500 अदा करता था, अब 22000 अदा कर रहा है। हमने 59% आमदनी में इजाफा किया। रोटी कपड़ा मकान का वादा हर दौर में निभाया। दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसीज नाकाम हो चुकी। पर्ची शहजादा तरक्की पर खाए। फिरदौस आशिक अवान ने बिलावल को पर्ची शहजादे का नाम दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी कहती हैं आने वाला बजट ऑपोजिशन के लिए सरप्राइज लेकर आ रहा है। पर्ची शहजादे को तनकीद से पहले सिंध के अवाम को दी गई सौगातों बारे सोचना चाहिए। दहाइयों से सिंध के अवाम पर मुसल्लत पीपल्स पार्टी ज़ाती हमलों के बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो दे। बजट से पहले शहबाज शरीफ और कनीज़ों का वावेला बेमकसद है। 1 अरब दरख्त कहाँ गए? नून लीग ने तहरीक इंसाफ को फ्रॉड और झूठ की हुकूमत करार दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत ने अवाम का जीना दो भर कर दिया, हर वादा फ्रॉड निकला। वजीर आजम NRO ना देने के राह गलाते हैं, मगर जिनको देना है दे देते हैं। 1 अरब दरख्त लगाए हैं, मगर अवाम तलाश कर रहे हैं कहाँ लगे हैं। वजीर हर रोज झूठ बोलते हैं, 2.5 सालों में प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं किया। वजीर आला हाउस करप्शन की आमाजगाह बना हुआ है, करोड़ों रुपए देकर DC लग रहे हैं। FATF से ठंडी हवा का झोंका।
पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक ग्रुप की फॉलो अप फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। म्यूचुअल एवोल्यूशन रिपोर्ट जारी, पाकिस्तान ने FATF की 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल कर लिया। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, किसी भी मुल्क की तरफ से 2 साल में 20 मेयारात में बेहतरी बेमिसाल है। पेंशन लेने वालों को टेंशन देने की तैयारी, पेंशन पर भी टैक्स लगेगा। हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया, IMF की शर्त मानने की तैयारी, 7.5% टैक्स आयद किए जाने का इम्कान, प्लान तैयार कर लिया गया। पेंशनर्स को सालाना 2.5 अरब रुपए अदायगी करना पड़ती है। ग्रेजुएटी पर भी टैक्स आयद करने पर गौर, हुकूमत को पेंशन फंड्स पर टैक्स आयद करने से 18 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा होने का तखमीना। बैंकिंग मोहतसिब का एहतसाब, सदर मुमलिकत ने बैंक की बद इंतजामी के खिलाफ शिकायत पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। आरिफ अलवी का शहरी की शिकायत पर मुनासिब कार्रवाई ना करने पर इज़हार बरहमी। लाहौर की रिहायशी के बैंक अकाउंट से 1,40,000 रुपए बगैर इजाजत मुंतकिल किए गए थे। कमर्शियल अदालत भी खुल गई। पंजाब की पहली कमर्शियल कोर्ट का लाहौर में इफ्तिताह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इफ्तिताह करते हुए कहा, कमर्शियल मामलात के जल्द फैसले तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क़याम का मकसद सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। ये अदालतें कारोबारी माहौल बेहतर बनाने और तनाज़ात के बरवक्त हल में अहम किरदार अदा करेंगी। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक फिर नैब के रडार पर। साद रफीक और रेलवे अफसरों समेत 10 इंक्वायरियों की मंजूरी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, बड़ी मछलियों के खिलाफ वाइट कॉलर क्राइम्स के मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब की अव्वलीन तरजीह है। कोरोना काबू में, मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.81% पर आ गई। 24 घंटों में 1,923 नए केसेस, 84 अमवात। पंजाब में हालात मामूल पर आने लगे। पीर से स्कूल्स खुल जाएंगे। सूबे में मज़ारात भी ज़ायरीन के लिए खुल गए। वैक्सीन लगवाएं, पाबंदियां खत्म कराएं। मोमिन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने फार्मूला बता दिया। कहा, जब तक तमाम शहरियों को वैक्सीन नहीं लगती, पाबंदियां खत्म नहीं हो सकती। कोरोना केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। मुल्क भर में शहरियों की वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी। चीन से कोरोना की मजीद 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गई। रवा माह मजीद 1 करोड़ 10 लाख खुराकें आएंगी। कोरोना फंड कौन खा गया? नून लीग को कोरोना रिलीफ पैकेज में बड़ी बेज़ाब्तियां नजर आ गईं। कोरोना रिलीफ पैकेज पर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने दावा किया, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में संगीन बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई है। रिलीफ फंड के अरबों रुपए के साथ आटा, चीनी और अद्वियात वाला खाल हुआ। पहले दवाइयों के 500 अरब खा गए, अब कोरोना का रिलीफ पैकेज खा गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का शिमाली वज़ीरिस्तान का दौरा। मीरान शाह में पहले पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इलाके के लिए नादरा की 2 मोबाइल वैन फराहम करने का भी वादा। कहा, अंगूर अड्डा समेत दूसरे इलाकों में भी पासपोर्ट ऑफिस बनाएंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए सूबाई हुकूमत और वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी। कबायली माहिदीन ने वज़ीर दाखिला को शिमाली वज़ीरिस्तान के मसाइल के हवाले से आगाह किया। पूरी इंसानियत को माहौल की बेहतरी के लिए काम करना होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का माहौलियाती के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, बल्दियाती इदारे और मुकामी हुकूमतें शजरकारी में मुअस्सिर किरदार अदा कर सकती हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, माहौलियात पर अमली इकदाम कर रहे हैं। कराची को ग्रीन बनाकर छोड़ेंगे। क्लिफ्टन में अरब फॉरेस्ट में पौधे लगाए। लाड़काना, थर और सखर में शजरकारी की। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं, मौजूदा हुकूमत
माहौलियात के शोबे में काफ़ी काम कर रही है। पंजाब असम्बली की नई इमारत मुकम्मल हो गई है। अगर हमारा मंसूबा जारी रहता तो कम अज़ कम 2 अरब की बचत होती। साबिक हुक्मरानों के दौर में बातें ज़्यादा हुई और काम नहीं हुआ। सिंध के पानी के हिस्से में मजीद इजाफा। तर्जुमान इरसा के मुताबिक तरबेला में पानी की सतह 3 फुट ज्यादा हो गई। मंगला में भी 2 फुट इजाफा हुआ। डैमों में पानी की मिकदार में मजमूई तौर पर 1,11,000 एकड़ फुट का इजाफा हुआ। सिंध के हिस्से में 5,000 क्यूसिक का इजाफा कर दिया गया। मजमूई तौर पर 1,20,000 क्यूसिक दिया जा रहा है। पंजाब का हिस्सा मजमूई तौर पर 1,07,000 क्यूसिक है। पानी से इंतकाम। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम। कहा सिंध में मुखालफिन को ज़मीनों का पानी बंद करके इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है। सिंध में डाकू राज कायम है और कच्चे में डाकू वीडियो बनाकर सिंध हुकूमत को ललकार रहे हैं। पक्के के डाकू ऐवानों में बैठकर उन कच्चे के डाकुओं को बचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पक्के के डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं। सिंध के पानी चोरों की लिस्ट जारी करेंगे। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध के मसाइल का 3 नुकाती हल भी पेश कर दिया। कहा एनएफसी को पीएफसी के साथ मशरूत किया जाए, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत तमाम इदारे मेयर के मातहत किए जाएं। सरकारी तकरीब सरकारी जबान। वज़ीर आज़म ने सरकारी तकारीब में उर्दू इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। तमाम सेक्रेटरीज को मरासला जारी वाज़े किया, तकाबत सिर्फ कौमी जबान उर्दू में मुरतब की जाए। पीएचडी डिग्री होल्डर्स सरकारी मुलाजमीन को 25,000 रुपए माहाना अलाउंस नहीं दे सकते। सिंध हुकूमत की मुआसरत। हाई कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील के लिए महकमे कानून को खत लिख दिया। महकमे खजाना के मुताबिक अदालती फैसले से खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा। देश कोरोना के खिलाफ जंग, वैक्सीनेशन का अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के अमीर मुमालिक को तरक्की पजीर मुमालिक के लिए वैक्सीन अतिया करने की तजवीज़। चीन ने भी बच्चों और नौजवानों के इस्तेमाल के लिए साइनोवैक वैक्सीन की मंजूरी दे दी। भारत में यौमिया केसेस की तादाद में कमी। डांस दिखाओ वैक्सीन भगाओ। डांस करके कोरोना का भगाने का तरीका। वेनेजुएला में वबा के खात्मे के लिए खुसूसी त्यौहार, मकामी अफराद का रक्स। और फवाद खान डिज्नी प्लस सीरीज के नए प्रोजेक्ट मिस मार्वल में जलवागर होंगे। एक किस्त में एक्शन में नजर आएंगे।